बच्चों, I am Kabir's grandfather. Today I am going to tell you what kind of life we used to have in post independence. Uh, we were in a joint family. We used to have uncles, aunties, and all living together. And we, as a the children, were in quite number. We never used to have friends from outside because the numbers were so many that we used to play among ourselves. There used to be not a very sophisticated games except Ludo, Carom, which nowadays also you people play. But those we used to have games of cards also, simple cards, no Uno, and the houses used to have fans only, and during summers everybody used to sit in a big room under one fan, and during that time we used to chit chat, we used to tell stories among ourselves and tell what we were taught during the day in the school. And our teachers used to be also very simple. Our wardrobe used to be very simple, no number of dresses except a few. And the brothers and sisters used to eat not on a formal dining tables. Our mothers, aunties used to cook food by rotation, and we used to sit in a line on a mat and just sitting on the ground, and the life used to be very simple. And I want, as during the lockdown, that simplicity has come about, and we should follow the same simplicity. Lots of love, Kabir's Dada. Namaste. I am Kabir Talwar's grandmother, Nani. And in 1950s, I was in Missouri. And that time, it was so reasonable. You could get 2 rupees की 2 पैसे की इतनी सारी मूंगफली आ जाती थी. अब 1 रुपए की नहीं आती. And there was no pollution, there was no construction, very little construction. Up to it's full of houses. That time there was no construction, and we didn't have a TV in the house, and we didn't have mobiles. So we spent a lot of time with the family. It was nice bonding with everyone. And telephone also was, you had to book through exchange. If you wanted to talk out of Missouri, you had to book a trunk call and then talk. And we had a small radio in the house, which everyone, once the cricket match used to start, the whole family would just sit around listening to what's happening. My dad was very, very fond of cricket. And there was nothing much to do except walk. And we used to walk to school and come back walking. And during the rainy season, when it used to rain very heavily, we used to go in a rickshaw. Rickshaw was being pushed by 4 people, and we used to go in that. Because nobody had cars in Missouri. It was absolutely clear and clean. People only walked wherever they had to go, or they took horses. There was nothing. And everything was very nice that time. It was very reasonable, pure, clean, without all this cluttering up with mobiles and TVs and all that. But now
And so life was very simple and nice at that time. Okay. नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं कबीर की दादी आज आपके सामने आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। 1950 में जब हमारा जीवन था वो बहुत सरल, सीधा और एक बिल्कुल बंधा हुआ और सीमित सुविधाओं के अंदर था। हम सब भाई बहन घर में मिलकर इकट्ठे रहते थे, इकट्ठा भोजन करना, इकट्ठे बैठ के काम करना। हमारी माताजी के साथ हमने हमेशा हर काम में मदद की है। पिताजी का कहना ही सर्वोपरि होता था, जो उन्होंने कह दिया वो बात हमें करनी ही है। हालांकि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था, पर हमारे संस्कार और हमारा वातावरण ही कुछ इस तरह का था, इससे ज़्यादा हमने कभी कुछ पाने की इच्छा ही नहीं की थी। सीमित साधनों के होते हुए भी हम अपने जीवन में बहुत मस्त, खुश और बहुत अच्छे से जीवन हमने व्यतीत किया है, जिसकी वजह से हम हमेशा खुश रहे। हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था। पढ़ाई की तरफ से भी हम अपने बड़े भाई बहनों से मदद ले लेते थे। माता पिता तक तो हमारी सिर्फ रिपोर्ट कार्ड ही जाती थी, और ना कभी उन्होंने इस मामले में हमारे बीच में कभी कुछ पूछा था। अगर हमें कोई दिक्कत होती थी तो हम अपनी माताजी के थ्रू ही अपने पिताजी को बात कहलवाते थे। स्कूल जाना, स्कूल पास है तो पैदल चले जाते थे या साइकिल में चले जाते थे। अपना बैग खुद जोड़ना, अपनी किताबें खुद संभाल के रखना, उनको कवर करना, अपना होमवर्क करना, इन सब में कभी हमने अपने माताजी को परेशान नहीं किया। और यही कारण था कि एक बेफिक्री का जीवन हम जीते रहे। और आज के वातावरण में भी आजकल जैसा अनलॉक चल रहा है और हम अपना काम खुद कर रहे हैं और घर में सब मिल के रह रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। लेकिन आज के जीवन में जो दबाव है कि हमें ये करना पड़ रहा है, ये पहले जीवन में नहीं था, क्योंकि वो हम एक अपने जीवन की शैली ही ऐसी थी। तो बच्चों, आगे की ज़िंदगी के लिए मेरी आपसे यही है कि अपना काम जितना हो सके खुद करने की आदत डालो, दूसरों पे डिपेंड होना कम कर दो, जिससे आपको ज़िंदगी में और तरक्की मिलेगी और आप खुश रहोगे। मेरा बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। नमस्ते बच्चों, आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। मैं कबीर तलवार का नाना बोल रहा हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ। 1940s में मैं पैदा हुआ। उन दिनों हम लोगों के पास कोई टीवी, कोई मोबाइल फोन्स कुछ नहीं होते थे। इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती थी, कैंडल लैंप से काम चलाते थे। हमारा एक बहुत बड़ा परिवार था, 9 भाई बहन थे, सब एक साथ एक घर में रहते थे। सब एक दूसरे की हेल्प करते थे, पढ़ाते थे, कपड़े भी हम एक दूसरों के पहन लेते थे। उस समय 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था। गांधी जी ने शुरू किया था अंग्रेज़ों को भगाने के लिए। जब देखो जब कर्फ्यू लग जाता था शहर में, मेरे नाना को शिकार का बहुत शौक़ था, तो वो हमको ले जाते थे शिकार के लिए जंगल में। वहाँ जंगल में जाके शेर का शिकार किया करते थे। लाइफ उस समय बहुत अच्छी थी, बहुत सिंपल थी। सब लोग फैमिली, सब आपस में फैमिली बॉन्डिंग बहुत थी। सब भाई बहन, भाइयों के बच्चे सब एक साथ रहते थे। खुद ही घर में सब लोग अपना काम करते थे, खाना बनाना, कपड़े धोना, सब अपने आप ही करते थे। पढ़ाई भी उसी एक साथ रहते थे। खुद ही घर में सब लोग अपना काम करते थे, खाना बनाना, कपड़े धोना, सब अपने आप ही करते थे। पढ़ाई भी उसी समय करते थे सब हम लोग। स्पोर्ट्स भी सब साथ में भाई बहन आपस में खेला करते थे। लाइफ बहुत अच्छी थी बच्चों की। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों। खुश रहो, खूब पढ़ो, खूब तरक्की करो, खूब खेलो। मेरे प्यारे बच्चों, सबको मेरा बहुत बहुत प्यार। मैं कबीर तलवार की ग्रैंड नानी बोल रही हूँ और मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनें। आज से 80 वर्ष पहले सन 1940 का साल कैसा रहा होगा, अब सोचते हैं तो उस ज़माने में क्या क्या होता था उसका विश्वास नहीं होता। सन 1940 में
अंग्रेज़ों का राज था। अंग्रेज़ बहुत ही ज़्यादा क्रूर थे। वे हिंदुस्तानियों पर बहुत जुल्म करते थे। बिना कसूर किए ही उन्हें फांसी पर चढ़ा दिए जाते थे। उस ज़माने में जो फिल्में बनती थी वे भी ब्लैक एंड वाइट होती थी। उनमें आवाज़ भी नहीं होती थी। गैस स्टोव अंगीठी नहीं होती थी। मिट्टी के चूल्हे बनते थे, उनमें लकड़ियाँ जलाई जाती थी, तब खाना पकता था। उस समय औरतों का घर से बाहर निकलना मना था। उन्हें अगर कहीं जाना भी होता था तो पर्दा करना पड़ता था। घर के सभी बड़ों से घूंघट करना पड़ता था, बहुत ज़रूरी था। घर के नौकरों तक से उन्हें पर्दा करना पड़ता था। पानी के लिए भी बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। पानी नदी से और कुओं से भरा जाता था। रोशनी के लिए तेल से दिए जलाए जाते थे। अंग्रेज़ों ने लालटेनें बनाई जो मिट्टी के तेल से जलती थी। अंग्रेज़ों के अत्याचारों से दुखी होकर कुछ हिंदुस्तानियों ने भारत को आज़ाद करने का बीड़ा उठाया। उनमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु ने आज़ादी का आंदोलन आरंभ किया। धीरे धीरे हिंदुस्तानियों ने इसमें भाग लेना आरंभ कर दिया। हजारों लोग फांसी पर चढ़ाए गए। इन क्रांतिकारियों में महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, लाला लाजपत राय, कई लोग शामिल थे। सन 1942 में इसका जोर बहुत बढ़ा। सबको जेलों में डाल दिया गया। आखिर सबकी हिम्मत रंग लाई। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा पूरे देश में छा गया। अंग्रेज़ों ने सन 1947 में तय किया कि वे भारत से चले जाएंगे और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। फिर धीरे धीरे हमारा देश प्रगति करता रहा। लड़कियों को पढ़ाया जाने लगा, औरतों को आज़ादी मिली, उन्हें भी फौज और बड़ी बड़ी संस्थानों में नौकरियां मिलने लगी। घूंघट से बाहर आकर उन्हें सम्मान मिला। अब हमारा देश आज़ाद है। पूरे विश्व में भारत का नाम है। अब सन 2002 के समय में 80 वर्ष बाद हम उस 1940 के समय की कल्पना भी नहीं कर सकते। अब भारत वासी सभी आत्मनिर्भर हैं, हम सब आज़ाद हैं। इसलिए जय हिंद। Namaste, I am Kabir Talwar and the homework that the school gave of talking to your grandparents and recording videos about their experiences and lives in 1940s and 50s. I have been listening to their stories, and now in this lockdown I wish I had 14 or 9 brothers and sisters who I could play with and eat dinner with them. Thank you.